all are doing well. You hope you do all are safe, happy, and healthy. So today I'm back with the third part of the video that is related to your examinations only. These three videos are very much relevant for CS, IPCC, CS, CMA, and ACCPA. That means these videos are very much relevant for all of them who are going to appear for the exams, like a professional exams. So do take care of yourself and do follow the tips, and I can help you wherever it is required, where I can do so. So today's video is just related to the concept that how to attempt the questions, how to present the question in the examination to score well, to get good marks, and to get extra marks. It's not about extra marks for good in writing, but yes, it's extra marks for the presentation, extra marks for good presentation, and extra marks for better presentation. वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि आप अच्छा लिखोगे, आप अच्छा प्रेजेंट करोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो दिस एग्जाम्स, दिस November 20 exams, we're gonna rock it because we're gonna delete every flaws, we're gonna apply the don'ts, we're gonna apply the do's, and yes, we're gonna apply the presentation tips as well. So moving to the video, how to present your answer in examination, right? So first of all, the very important point is always write down the relevant answers. Always write down the relevant answer. हमें ये ध्यान में नहीं रखना है कि हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और हमने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है. हमें एग्जाम में वो लिखना है जो हमें आता है. इफ इट्स अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, देन इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे एक पेज भर के आना है. इफ इट्स अ 4 मार्क्स क्वेश्चन and you are writing down very relevant points, then half page of the answer sheet is even enough. Half page of the answer sheet for 4 marks question is enough. If you're writing down a very relevant points, to the point answer, even then it's fine. If you're writing down extra वही चीज आप रिपीट करे जा रहे हो जो फर्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब कर चुके हो, दिस विल गिव अन इम्पैक्ट कि आपको आता नहीं है, मतलब स्पेस फिल कर रहे हो. वो मार्क्स के लिए, उस पॉइंट के लिए मैं आपको 1 मार्क तो पहले दे ही चुकी हूँ. Why I'll give extra marks again and again? I'll give you 2. No. So no need to write the things again and again and again. Be precise, be relevant, and आपको जो भी लिखना है वो आपको सोच समझ के अच्छे से लिखना है. आपको कहानियाँ नहीं मारनी है. इन वेरी शॉर्ट, इन वेरी लेमन लैंग्वेज आपको अपने एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कहानियाँ नहीं मार के आनी है जी. जो आपको आता है, राइट डाउन दैट. सो इन प्रेजेंटेशन डू टेक केयर ऑफ द थिंग कि आपको जो लिखना है वो रेलिवेंट लिखना है. सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस स्टडीज. एग्जामिनेशन में जो आप थियोरी पेपर्स के लिए, इन नॉट ओनली फॉर केस स्टडीज, थियोरी पेपर्स के लिए जब आप अपने क्वेश्चंस लिखते हो, ट्राई टू राइट डाउन दैट इन अ बुलेट पॉइंट्स. Try to write down that at bullet points. Don't write your theory papers in a paragraph. It's a big no. It's a big no. Don't write down your theory papers in a paragraph. Try to make a bullet points and then elaborate. This will give an impact कि आपने जो points लिखे हैं, these are relevant and आपको आते हैं. If you write down in a paragraph, तो वो whole paragraph पढ़ना, I'll read it out. Obviously, the examiner will read it out. बट वो इम्प्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ता है. वेन आई गेट माई ईज इन चेक द पेपर, यू विल गेट ईज इन गेटिंग द मार्क्स. सो इट्स अ बोथ कन्वीनियंट थिंग. सो यू हैव राइट डाउन योर आंसर इन अ बुलेट पॉइंट्स. दैट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर यू एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स. जहाँ पे मैंने आपको 2.5 देने थे, मैंने 3 दे दिए, 3.5 दे दिए, बिकॉज आई फाउंड इट कन्वीनियंट एंड मुझे पॉइंट से ही पता चल गया कि इसको ये क्वेश्चन, इसको ये आंसर अच्छे से आता है. So do that. Okay. So next point, how to attempt the case studies. ये ऐसी चीज है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए और बच्चों को नहीं आता है. थ्योरी एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको फर्स्टली बुलेट पॉइंट्स मैंने बोले हैं. सेकेंड, अगर आपको केस स्टडी रेफर करनी है, आपको करना कैसे है. फर्स्टली नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट इज facts of the case. Facts of the case. That means जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें से क्या आपको समझ आया है. What question is all about? If the question is of half page or full page of the question paper,
तो आपको फैक्ट्स प्रिसाइज करके ब्रीफ करके वहां नोट डाउन करने, तो वी विल कॉल इट फैक्ट्स ऑफ द केस। सेकंड पॉइंट इज एज पर लॉ। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या कहते हैं आपको, जो क्वेश्चन में क्या बताया गया है। सेकेंड पॉइंट इज एज पर द लॉ। एज पर द लॉ आपको क्या कहता है लॉ इस केस के बारे में, सिर्फ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस केस के बारे में लॉ आपको क्या कहता है। आई हैव टू डिस्क्राइब दैट इन एज पर द लॉ। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पैराग्राफ इज ऑब्जर्वेशन। व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दैट मीन्स जो केस स्टडी में मैंने आपसे डिमांड मांगी है, जो आंसर मांगा है, आपको वो फैक्ट्स ऑफ द केस एज पर लॉ दोनों के हिसाब से जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट बिकॉज आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है एज पर द केस लॉ। उसमें अगर आपको केस लॉ का अपना नाम पता है, राइट, आपको पता है केस लॉ कौन सा है, यू कैन कोट द नेम ऑफ द केस लॉ बिफोर गिविंग फैक्ट्स ऑफ द केस, बिफोर गिविंग फैक्ट्स ऑफ द केस एंड व्हेन एंड अंडरलाइन दैट। आपको ना केस लॉ का नाम लिख के उसके साइड में एक बॉक्स बना देना। केस पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, इट्स इररिलेवेंट, राइट। आपको लिख के आपको एक बॉक्स बना देना है, उसको बॉक्स में फ्रेम कर देना। अगर आपको अच्छे से केस लॉ का नाम पता है, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। और जो भी आप हेडिंग्स लिख रहे हो, इफ आई एम राइटिंग डाउन ऑब्जर्वेशन, उसको एक बॉक्स बना दो, पेन से ही ऐसे बॉक्स बना दो, राइट, कि हमने ऑब्जर्वेशन इज अ पॉइंट। गॉट इट? After writing down the point of observation, the fourth point is conclusion. Conclusion very much necessary. आप ये बताओगे जो मैंने आंसर दिया है it's correct or not? Yes, I agree with the fact. No, I don't agree with the fact. इससे आपका यहाँ आपका आंसर स्टार्ट होगा as per the aforesaid case, as per the above description, as per the above observation. इससे आपका आंसर स्टार्ट होगा अगर आपको नहीं आता है, राइट। सो आपको रेलिवेंट प्रिसाइजली बताना है। अच्छा, एक पॉइंट का आपका और भी रह गया, ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है वो आपको स्टार्ट ही यस नो से करना है। ऑब्जर्वेशन का पॉइंट आपको स्टार्ट ही यस नो से करना है। यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, नो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। गॉट इट? और अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है, ये तो मैंने अब आपको बताया कि आपको जब आता है तब आप यस नो आराम से बता सकते हो। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है, यू डोंट नो अबाउट इट कि क्या आंसर हो सकता है, देन आपको यस नो से आंसर नहीं करना है, तब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। और कंक्लूजन में भी आपको बता सकते हो यस एग्री और नॉट एग्री, बिकॉज वो तो आपको बताना है। बट अगर आपको आता है ओनली देन यू कैन स्टार्ट योर ऑब्जर्वेशन विद यस और नो। नहीं आता है तो डोंट डू दैट। आपको गलत नहीं लिखना है। डू रिमेंबर दिस थिंग, आपको पेपर में गलत नहीं लिखना है। नहीं आता छोड़ दो भाई, मुझे नहीं आता, राइट, नहीं आता छोड़ दो, मुझे नहीं आता। आपको पेपर में गलत नहीं लिखना है। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके बहुत सारे आंसर निकल रहे होते हैं, राइट। मीन्स इट्स ऑलवेज अ स्टेप मार्किंग, इट्स ऑलवेज अ स्टेप मार्किंग। सो आपको अलग अलग स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। सो टू गेट द गुड मार्क्स और गेट द एप्रोप्रिएट आंसर्स, हमने क्या किया, हमने ए पार्ट सॉल्व किया। एक क्वेश्चन के हमने अगर सॉल्व करेंगे तो 5-6 आंसर्स आते हैं, उसको कंबाइन करके एंड में हम कंक्लूजन में एक आंसर निकलता है, राइट। सो हमने क्या करना है, इफ आई एम राइटिंग इट डाउन, तो हमने क्या करना है, हमने ये लिखा, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया और आंसर हमने साइड पे एक बॉक्स बना के दे दिया। इट्स विजिबल? हमने साइड पे एक बॉक्स बना के आंसर दे दिया। सेकेंड पार्ट सॉल्व किया, साइड पे बॉक्स बना के आंसर। थर्ड पार्ट सॉल्व किया, साइड पे बॉक्स बना के आंसर दे दिया। दैट मीन्स आई एम नॉट मिक्सिंग माई आंसर्स इन अ फुल क्वेश्चन। आई एम नॉट मिक्सिंग माई आंसर्स इन अ फुल क्वेश्चन। मैंने साइड पे एक बॉक्स बना के उनको आंसर्स दे दिए हैं ताकि जो आंसर्स हैं, वो जो मार्कर है, जो चेकर है, उसको विजिबल हो और आपकी मार्किंग इजिली वे से हो जाए। दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। और एंड में भी जो हम आंसर निकाल रहे हैं, हम उसको एक आंसर लेके उसको फ्रेम कर देंगे। दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। गॉट इट? और सेम चीज आपको करनी है फॉर्मूलाज के साथ। फॉर्मूला लिखा, उसका एक बॉक्स बना दिया, फॉर्मूला लिखा, उसका एक बॉक्स बना दिया। दैट मीन्स जो चीजें आपके पेपर में प्रेजेंटेबल हैं,
जो चीजें आपके पेपर में रेलिवेंट है उसको हम बॉक्स बना के अंडरलाइन साथ में करें. नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पेंसिल यूज करनी है. नॉट एट ऑल नेसेसरी. आपको पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है. आप पेन के साथ साथ में करते जाओ. इट्स फाइन, बिकॉज यू हैव टू सेव योर टाइम, यू हैव टू कंप्लीट द पेपर एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंटेशन एज वेल. हम बोथ काम करेंगे बट इन अ वेरी टाइम सेवर वे. सो आप वो पेन से ही साथ में कर दो. इट्स फाइन. ये नहीं है कि एग्जाम खत्म करोगे देन कम बैक एंड आप अंडरलाइन के लिए 5-7 मिनट निकालोगे. नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी. हम छोटी क्लास के बच्चे थोड़ी हैं कि हम क्या करेंगे, लाइंस लाएंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन लगाएंगे. नॉट एट ऑल नेसेसरी. आपने क्वेश्चन खत्म किया, क्वेश्चन खत्म किया, 2 लाइन्स मार्क कर दी, सफिशिएंट. मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया, सफिशिएंट. एंड जब भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शीट से ही शुरू करना है. आपको उस शीट से क्वेश्चन शुरू नहीं करना है. एज्यूम कि ये मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, मुझे सिर्फ 2 लाइन्स यूज करी है मैंने और मैं कह रही हूँ मेरी पूरी शीट खाली है. सो व्हाट, आपको नेक्स्ट से ही स्टार्ट करना है. आपको यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है. यहाँ से आपको नहीं स्टार्ट करना है. यहाँ से आप तब स्टार्ट कर सकते हो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन. तब आप उसी शीट से स्टार्ट कर सकते हो. बट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट क्वेश्चन देन फ्रॉम अ वेरी नेक्स्ट शीट. डू रिमेंबर दैट. डू रिमेंबर दैट. आपको प्रैक्टिकल पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. And don't, one very major point, no need to code the sections when you are not sure about it. No need to code the case law when you are not sure about it. No need to code the sections when you are not sure about it. No need to code the case law when you are not sure about it. No need to mark the hyphens, margins in a theory paper. That's not at all required. Read the question paper very minutely, very minutely. That is must for you. And don't need to attempt the question in a proper sequence. You can prioritize according to your knowledge. You can prioritize according to the thing कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है. Then you can attempt later on. And yes, जो लोग कहते हैं कि हम पूरा अटेम्प्ट नहीं पेपर कर सके, उससे क्या होगा, प्रायोरिटाइज करने से क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो आपके पेपर में नहीं छूटेंगे बिकॉज आपने प्रायोरिटाइज किया है. अगर कुछ छूट भी गया बिकॉज ऑफ सम लेंथी पेपर तो उसमें आपको वो छूटेगा जो आपको नहीं आता है. एंड जो आपको चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है उसको अटेम्प्ट करो एकदम लास्ट में. एकदम लास्ट में जितना टाइम आपको डिवोट कर सकते हो लास्ट में डिवोट करो. बट जो आपका क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है. एंड वन मोर थिंग, वन पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. अगर आपने रिविजन्स अच्छे से करी हुई हैं, अगर पॉइंट ऑफ टाइम मॉक टेस्ट करे होंगे, आपने आरटीपीस करी होंगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें थोड़ा आइडिया फ्रेम हो जाता है माइंड में कि हमें एक क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है. माइंड सेटअप हो जाता है कि हम एक क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है. तो उस माइंड सेटअप से फ्रेम से हमने अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है. अगर आपके एग्जाम में यू गोइंग टू गेट 3 आवर्स, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम मैं इसको डिवोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम पहले मैनेज करना है. डोंट स्ट्रेच आउट द टाइम. जिसको आपने 30 मिनट्स दिए थे आपने 40 दे दिए हैं या 45 दे रही हैं. व्हाट विल हैपन, जो आपके नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस है उसका आपका टाइम आप एडजस्ट करते जाओगे और एंड में आपका पेपर छूट जाएगा एंड यू विल गेट पैनिक. टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट, जो आपको सीखनी ही पड़ेगी. वॉच लेके जाओ. टाइम जब क्वेश्चन पेपर रीड करते हो देन मार्क द टाइम सेट करो अपने माइंड में, अपने ब्रेन में सेट करो कि इस क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम देना है. ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसमें मुझे कम टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, इस क्वेश्चन का टाइम मुझे यहाँ डिवोट करके आई कैन अटेम्प्ट माय पेपर इजीली. बिकॉज जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सोचने में कम टाइम लगेगा. जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको सोचने में, उसको मैनेज करने में आपको टाइम ज़्यादा चाहिए. सो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता है हम उसको ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, और जो नहीं आता है वो ऑलरेडी नहीं आता है, उसको सोचने में हमें टाइम नहीं मिलता है. सो ट्राई टू मैनेज योर पेपर इन अ वेरी वेल मैनर. You worked really hard for your examination. It's just your revisionary thing. I have tried myself to discuss everything that I can do so instead of that, अगर कभी भी मेरे mind में after that भी कुछ आएगा, I'll definitely share with you out. And apart from that, if you have any queries still left out, मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं अगर डिस्कस करी हैं, इफ यू फील सो, और आपकी अगर क्वेरीज हैं कुछ इस डिस्कशन के बाद भी, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट. यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम माई सोशल मीडिया अकाउंट्स. यू कैन
drop message on my Instagram, you can drop message on my Messenger, you can drop message on my LinkedIn account, and you can contact me anytime. You're most welcome. Don't panic, relax yourself, work hard, study hard, present well, and all the very best from my side. I know you all gonna rock it and present your examination very well. Thank you so much. Stay happy, stay blessed. God bless you all.